So, welcome everyone. I welcome you in this session where we are talking about 11 laws which we always ignore. Okay, so we have talked about till now 5 laws, and today we'll talk about the sixth law, which is very important law. And the sixth law is law of compensation. Law of compensation. Law of compensation. This is very, very much important. Law of compensation. Law of compensation. What exactly this is? Law of compensation का मतलब होता है कि ऐसा आप क्या करोगे कि आपके लाइफ में कभी पैसे को लेके प्रॉब्लम ना हो. Compensation is directly related with money. And money is very important. जिसके पास बहुत पैसे हैं उनको लगता है यार मनी कुछ भी नहीं है. आज जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है उनको लगता है कि मनी क्या चीज होता है. Money is a very important thing, and I to always feel it is very important. So what you should do so that you never have problems in your life. अब आप करोगे कि आपके घर में कोई और करेगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट what you should do ताकि आपके लाइफ में कभी मनी को लेके प्रॉब्लम ना हो. So we'll talk about the law of compensation. So this law is very important, law of compensation. Law of compensation has three parts. Law of compensation has three parts. The number one part is be people centric. Be people centric. Do what people need. Be people centric. Do what people need. You have to be people centric. People centric मतलब लोगों को क्या चाहिए, what people need. So that is the first thing when you try to evaluate law of compensation. आप जो भी करते हो, whatever you do, you are in a job or you are in a business or you are a housewife, but you want to do something. आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में ताकि you can also earn something. Always remember, law of compensation means first it has 3 points. The first point is be people centric. आप अगर ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों को जरूरत है. Suppose right now what I am doing, I am taking personality development class. This is what I am doing. Now first point is क्या ये आपको जरूरत है? Yes or no? अगर yes, if you think yes, then we will go for the second point. If your answer is no, then जो मैं कर रहा हूं वो करके मैं कभी पैसे नहीं कमा सकता. So the first point is whatever you are doing, is it benefiting the people or not? क्या ये लोगों को हेल्प कर रहा है? अगर कर रहा है तो let's go for the second point. So be people centric, do what people need. The second point says if people need it, the next question is, are you capable enough? Are you efficient? Do you have the right knowledge? Do you have the right skill to serve beyond what people need? This is also very much important. Okay, so now I believe that what I'm doing, I'm teaching you personality development. The first point was क्या आपको ये जरूरत है? Do you really need it? The first point was positive. Yes, you need that. Now second point is जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ा रहा है, मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या do I have the proper knowledge? Do I have the proper skill to teach you? This is the second point. ये मुझे सोचना पड़ेगा. I have to think it. ताकि मेरे लाइफ में कभी पैसों की प्रॉब्लम ना हो.
So agar if I'm talking about my life, I should not have the problem, money problem. Then the first point is whatever I'm doing, I'm teaching grammar, I'm teaching personality development, I'm teaching you executive communication, आपको जरूरत है कि नहीं? अगर है तो सेकंड पॉइंट, डू आई हैव द कैपेसिटी, एम आई एफिशिएंट, मैं एफिशिएंट हूं, क्या मेरे में कैपेबिलिटी है? और ये कैपेबिलिटी कहाँ से आएगी? राइट नॉलेज, क्या मेरे पास नॉलेज है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? डू आई हैव द नॉलेज, डू आई हैव द कैपेसिटी टू टीच यू ऑल? अगर यस है, then go to the next point. But if I think that no, I don't have the right knowledge, then I should again go back. So guys, ये जो 3 points है, law of compensation, if you really want to, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कभी पैसों की प्रॉब्लम ना हो, दिस 3 points are very very important. And if you satisfy these 3 points, you will never have money problems in your life. You will never have money problems. Okay, so the first point is जो मैं suppose I am checking my law of compensation. Suppose मैं अपना law of compensation check कर रहा हूँ, ठीक है? So the first point is whatever I am doing, क्या ये आपको help कर रहा है? Suppose help कर रहा है. Let's go to the next. Do I have the capacity to teach you? So I feel that yes, I'm studying. मैं बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ. I'm teaching for last 12 years, so I have the skill to teach. Okay, now the next part. Now the third part. So even जब आप अपना law of compensation check करो, you also see these 3 parts. These 3 parts are very important. Okay. Number 3 is be irreplaceable. Be irreplaceable. Be irreplaceable. Be irreplaceable. Okay, so I'm telling to myself, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ. Okay, I'm talking to myself. That Subhash, if you want to succeed in life, if you want to achieve wealth in life, first of all, are you doing whatever you are doing? Is it benefiting people? I answer myself, yes, it is benefiting. The second question I have to ask me, whatever I'm doing, uh, do I have the proper knowledge? Do I have the proper skill? Okay, I'm getting myself, yes, Subhash, because you have been teaching for last 12 years, so you have the skill and you have read so many authors, you have read many motivational speaker, you have got many ideas, so definitely chances are very high that you have the knowledge. Okay, then the 2 points are over. Now the last thing is, are you irreplaceable? Are you irreplaceable? मतलब होता है कि क्या कोई भी आके मुझसे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ पे, और क्या मुझे कोई अलग कर सकता है? सो ये आंसर मुझे अपने को देना पड़ेगा. क्या मैं अपना काम इतनी ईमानदारी से कर रहा हूँ, इतने अच्छे से कर रहा हूँ कि कोई मुझे हटाने से पहले 100 बार सोचे? ये आंसर मुझे अपने को देना पड़ेगा. गाइज, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, द मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल आज के जमाने में, दैट इज आईफोन. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट आईफोन, राइट? iPhone, who created iPhone? iPhone was created by Apple, और एप्पल को बनाया था जिस इंसान ने, उनका नाम था स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स, आप में बहुत लोगों को पता होगा स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी स्टार्ट की and it was doing very good, and then lot of employee they joined Apple. मतलब बहुत लोग उस एप्पल में ज्वाइन किए. उसके बाद पता है क्या हुआ? सब लोगों ने मिलके स्टीव जॉब्स को ही नौकरी से निकाल दिया. इमेजिन, द पर्सन हु क्रिएटेड एप्पल, ही वाज टर्मिनेटेड. कैन यू बिलीव दिस? मतलब कोई दूसरा कोई होता, आया बट डिडंट परफॉर्म, निकाल दिया. Steve Jobs,
who was the founder of Apple, he was terminated from Apple. And you know what happened? स्टीव जॉब्स को हटा दिया, एंड व्हाट स्टीव जॉब्स डिड, वो बाहर जाके दो डिफरेंट कंपनी स्टार्ट कर दिया. टू डिफरेंट कंपनी ही स्टार्टेड, एंड बाद में एप्पल वालों ने उनका पैर पकड़ के बोला भाई हमारे यहाँ पे आ जाओ. एंड देन स्टीव जॉब्स वो दो कंपनी जो उन्होंने बनाया, उन दोनों कंपनी को लेके दे केम टू एप्पल. कुछ लोग इररिप्लेसेबल होते हैं, उनको जैसे आप हटाओगे ना कंपनी रहेगा, ना घर रहेगा, ना कुछ भी रहेगा. सो नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन, जो भी काम आप करते हो, वॉट एवर द जॉब यू डू, वॉट एवर द बिजनेस यू डू, आपको क्या लगता है, आर यू इररिप्लेसेबल? थिंक अबाउट इट. देखो, you have proper knowledge, you have technical everything skill, but that is not enough. If to become irreplaceable, you have to do your job with integrity, dignity. Lot of qualities are required for that. You have to have the integrity कि आप अपने कंपनी के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसमें किसी का लॉस हो. लॉस हो सकता है, लेकिन आप जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे किसी का लॉस हो. जानबूझ के लॉस तो डेफिनेटली होगा, आप सबको खुश नहीं कर सकते. अभी आईडीक्यू में देयर आर मोर देन 500 स्टूडेंट. वी आर ऑल ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट. फिर भी कुछ 5 जन होंगे जो हमसे खुश नहीं है. वी कैन नॉट प्लीज एवरीवन. बट हाँ, क्या हम अपने को आंसर कर पा रहे हैं कि यस, नहीं, हमने अपना बेस्ट दिया, वो हमें कंफर्टेबल कराएगा. ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आर यू इररिप्लेसेबल? कैसे समझोगे, कैसे समझोगे आप इररिप्लेसेबल हो? जब भी आप कोई काम करते हो, व्हेनेवर यू डू समथिंग, वो ऑफिस का काम हो या बिजनेस का काम हो या घर का काम हो, जब भी आप उस काम को करते हो, क्या आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट देते हो? यू गिव योर बेस्ट. सुभाष कार्तिक ऐसे भी क्लास ले सकता है, बट ही गेट्स इन्वॉल्व्ड इन दैट because Subhas Karthik knows that it is not what is my business, it is something I love. I give everything when I take class. This is what I'm talking about me. आपको नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, but I know I'm giving my 200% when I take any class. This is my belief. So आपको कोई बोल रहा है कि नहीं वो सेकेंडरी है. आपको लगता है कि when you do your work, you give your 200%. Think about it. अगर yes, if yes, then you are irreplaceable. For example, मैं अभी आपको बोल सकता हूँ, suppose you are doing a job and you have been given some work. आप जॉब करते हो, आपको पैसे मिलते हैं और आपको कुछ काम करने पड़ते हैं. You have to do A, B, C, D. Okay, please understand, this is very important. You are doing a job, you are doing A, B, C, D. This job is your job, and for this job you are getting salary. Suppose your boss comes to you and tells you कि आपको EFGH ये काम भी करना पड़ेगा. आप क्या बोलते हो सकता है आप ना नहीं बोल पाते क्योंकि ही इज अ बॉस, लेकिन आपके अंदर में क्या चलता है? Why should I give my best? ये मेरा काम ही नहीं है. Why should I give my best? This is not my job. भाई जितना सैलरी मिलेगा मैं उससे ज्यादा बिल्कुल काम नहीं करूंगा. मेरे को जितना पैसा मिलेगा मैं उतना ही काम करूंगा. आई विल डू ओनली व्हाट आई एम पेड फॉर. आई विल नॉट डू बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड. दैट इज नॉट माई जॉब. अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप इररिप्लेसेबल नहीं हो. मैं आपको द क्लूज दे रहा हूं, आप ये क्लू से समझ जाओ दैट आप इररिप्लेसेबल हो कि नहीं हो. Because the person who are irreplaceable, they love their job. उनको मजा आता है उनका काम करने में. उनको अगर आप ज्यादा भी दो दोगे, अगर वो खुश भी नहीं होंगे, बट दे विल गिव देयर बेस्ट, क्योंकि उनका आदत है भाई मैं काम करूंगा तो बेस्ट ही करूंगा.
वर्स्ट काम नहीं करूंगा. सपोज आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल, यू नो. क्या होता था मेरे को, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज वेरी स्मॉल. यू नो, माय डैड यूज्ड टू टेल मी कि सुभाष तो जाके ना कार साफ कर दो ना. सिंपल वर्ड, कार साफ करना है. सो मैं नीचे आता था, मैं सोचता था, एम आई अ कार क्लीनर कि मैं कार साफ करूं. जैसे तैसे कार को साफ करता था, हो गया. और एक होता है, यार इट इज आवर कार. यार ये मेरा कार है, मैं अपना कार क्यों नहीं साफ करूंगा. दिस आई विल गिव माई बेस्ट. बट ये थॉट मेरे में नहीं था उस समय मुझे लगता था कि यार मेरे को पापा ने क्यों बोला कार साफ करना है. दिस नॉट माई जॉब. कोई तो नहीं करता, वाई शुड आई डू इट. तो मैंने क्या किया, वो उस काम को किया. मैंने नहीं बोला मैंने नहीं किया, आई डिड दैट वर्क. बट आई डिड नॉट पुट माई बेस्ट एफर्ट. वो और भी अच्छा हो सकता था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू. व्हेन यू डू योर जॉब, डू यू गिव योर 200%. 200% क्यों? 100% आप अपना काम करते हो, और 100% आप इतने अच्छे से करते हो कि आपका जो बॉस है या कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आपको निकालने से पहले सोचेगा, इसको निकाल नहीं सकते बॉस. ही इज और शी इज इररिप्लेसेबल. आई वांट टू शो यू सम ऑफ द इररिप्लेसेबल पर्सन. मैं आपको कुछ ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जो इररिप्लेसेबल है, और आपको भी लगेगा यस, सम पीपल आर इररिप्लेसेबल. बात ये नहीं कि अमिताभ बच्चन से कोई अच्छा नहीं है, उनसे भी अच्छे हैं. लेकिन अमिताभ बच्चन जहां है वहां कोई नहीं है. ही इज इररिप्लेसेबल. इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो भी करते हैं ही गिव्स हिज बेस्ट. करेंगे तो बेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. मैं जस्ट करने के लिए कोई काम नहीं करता. व्हेन आई डू समथिंग, आई एंश्योर कि वो टॉप क्वालिटी का काम हो, टॉप क्लास काम हो. मैं भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं के सर से भी अच्छा पढ़ाऊं. ये कोई चैलेंज नहीं है, ये अपना एक कंट्रीब्यूशन है. इवन मैं बताऊं, के सर भी यही सोचते हैं कि मैं सुभाष से भी अच्छा पढ़ाऊंगा. ताकि मैं देखो, अगर सब लोग ऐसा सोचे ना कि मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मैं आई गिव माई बेस्ट, तो वो बेस्ट हो ही जाता है. वो जिस जगह पे जाता है वहां पे कोई उसे टच नहीं कर पाता. तो वही मैं बता रहा हूँ कि वेन यू डू योर वर्क, इवन आप खाना बना रहे हो सकता है आप हाउस वाइफ हो, घर पे खाना बना रहे हो, लेकिन जब बना रहे हो तो कैसे बना रहे हो. यार बनाना है, बना रहे हो. I have to do it, यार. I don't have cook. I told my husband many times, cook रख दो. My husband doesn't listen. I have to cook always. हाँ कर रहे हैं भाई, जैसा करना है कर रहे हैं. और एक होता है दे लव कुकिंग, दे लव टू कुक. सो दोनों अलग अलग. इफ यू लव टू कुक, आप बहुत अच्छा कुक हो, आपको कोई हिला नहीं सकता. और आप बहुत अच्छे कुक हो लेकिन आपको कुक करने में अच्छा नहीं लगता है, यू विल नेवर बी अ बेस्ट कुक. चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, आपको कितना भी कुकिंग आता है. कुछ लोग बोलते हैं, पता है, आई नो, ये पता है मुझे ये कैसे बना है. कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं बोलते हैं, आई नो ये कैसे बना है. कभी बनाते नहीं है घर पे, बट दे ऑलवेज से ये हम बना लेंगे, ये हम बना लेंगे, ये हम बना लेंगे. अरे बनाओ. कब बना लेंगे, यू नेवर मेड इट. आई डोंट नो ऐसा आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मेरे साथ तो होता है. So guys, I'm just telling you this, this is the thing that whatever you do, you give your best or not. That is very much important. So I'm going to show you more people. They are irreplaceable. Lata Mangeshkar. There are many singers, but Lata Mangeshkar is irreplaceable. Sachin Tendulkar. Virat Kohli is turning to be a better player than Sachin Tendulkar, but Sachin Tendulkar has created something outstanding. एंड ही इज इररिप्लेसेबल. सिर्फ खेल से नहीं, उन्होंने खेल से भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ किया है.
Swami Vivekanand. You all know this Ramdev Baba. Yes, whatever he does, he is irreplaceable. You love this person, you don't love this person, but what this person knows, that makes him irreplaceable. रॉजर फेडरर टेनिस प्लेयर, बहुत इनसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, बट ही इज इररिप्लेसेबल. माइकल जैक्सन irreplaceable. Steve Jobs, I told about Steve Jobs, he is irreplaceable. I don't know you know this person or not. He is Jamshedji Narsarwanji Tata. You know who created Tata Steel? Yes, he was irreplaceable. Our prime minister, yes, he is good, bad, I don't know. उनसे अच्छा हुआ कि खराब हुआ, I don't know, but he is irreplaceable. Whenever he goes outside, people respect him a lot. People are not happy with him, but people are not having the replacement also. इनको हटाए तो रखे किसको? See, I am not telling that मैं उनके साथ हूं कि नहीं हूं, but he is irreplaceable. सुभाष, आई एम टेलिंग यू व्हाट यू डू. आप भी तो कुछ काम करते हो, या तो घर पे या घर के बाहर. आर यू इररिप्लेसेबल? अगर आप सैलरी के लिए काम करते हो तो नहीं, यू कैन नेवर बी. सी, मुझे भी, आप लोगों को पढ़ा के मुझे भी पैसे मिलते हैं, बट क्या मैं पैसे के लिए इस सेशन में आया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. मैंने अपनी अच्छी नौकरी को छोड़ के मैं यहाँ पे आया. आई वॉज अर्निंग वेरी गुड. मैं 50,000 कमा रहा था, मैं यहाँ पे आके 5,000 कमाने स्टार्ट किया. तो लोग हंस रहे थे, ये देखो ये पहला इंसान है जो पीछे से आगे से पीछे आता है. बट आई नो कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, बिकॉज आई लव दिस. मुझे लगता है कि इसको छोड़ के मुझे कुछ नहीं आता है. एंड व्हेन आई डू दिस, आई गिव माई 200%. सो आई ट्राई कि मैं अपने काम में इररिप्लेसेबल बनूं. मैं बन रहा हूं कि नहीं वो बात की बात है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. That is important. So guys, this is very important that we become irreplaceable. There are many people who are irreplaceable. You can see here Ratan Tata, Gautam Adani, Mukesh Ambani, Sushil Ruyab, Narayana Murthy. So these are the list of people who have done outstanding in their life. You can see this person, Barack Obama and Mark Zuckerberg. हमारे Facebook के जो फाउंडर हैं, मार्क जुकरबर्ग and Barack Obama. Whatever they have done, they are irreplaceable. So guys, this is very important. If you really want कि आपके लाइफ में कभी पैसों की प्रॉब्लम ना हो, that is called law of compensation. If you really want कि आपके लाइफ में हमेशा, flow of money always comes, you also have to ensure these 3 points. Whatever you are doing, people, they need it. Whatever you are doing, you have proper knowledge and skill. And third, whatever you are doing your best. You are doing your best. जब ये 3 चीजें आप करोगे, आपके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी. This is the guarantee I'm telling you. You will always have your money flow coming. और अगर आपके लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि ये तीनों स्टेप में कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो थर्ड स्टेप में. क्योंकि ये 3 स्टेप के बाद आपके लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. अगर है तो इस तीनों में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है. अब आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. जो भी काम आप करते हो, या तो उस काम की कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्यों कर रहे हो वो काम? उस काम को छोड़ो, कुछ ऐसा काम करो जो लोग मांग रहे हैं. बट हो सकता है पहला ठीक है, जो आप काम करते हो वो ठीक है, हो सकता है उस काम से रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल आपके पास नहीं है. यू डोंट हैव द डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल. नाउ यू थिंक अबाउट इट, यू हैव और नॉट.
आपसे बढ़िया और कौन जानेगा। नाउ थर्ड इज, हो सकता है आपके पास नॉलेज, स्किल, एवरीथिंग इज देयर, जस्ट वन थिंग, यू डोंट गिव योर बेस्ट। आप बस कर रहे हो बिकॉज आपको जॉब में पैसा मिलता है, बिजनेस में पैसा मिलता है, यू डू द सेम थिंग, एंड यू आर द राइट पर्सन टू जज कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाइस, when you follow law of compensation, your life will never be the same again. Your life turn hoga in a positive direction, and you will always have the flow of wealth, flow of money in your bank account.